Hello and welcome to the channel. In this video we'll be studying about external application, which is a very important topic exam point of view, and it can be asked in LAQ majorly or they can be asked in SAQ. So it is a very important question. So before we study about the external application, first there are few numbers of aphorism which we have to remember. It can be asked in MCQ also. Okay, so if we want to study about the external application in homeopathy, we get the knowledge about the external application in aphorism number 196 to 203 of 5th edition of Organon of Medicine, and in the 6th edition of Organon of Medicine we get the knowledge about the external application in aphorism 284 and 285. Okay, so as you all know कि fifth edition of Organon of Medicine was written by Dr. Hahnemann. Okay, so in that he was against the external application in homeopathy. So he refused to accept, or he refused the use of external application. So in 5th edition in aphorism 196 to 203, he said that external application should not be done or external application should not be used. Okay, but in the 6th aphorism of Organon of Medicine, Dr. Hahnemann showed the necessity or the importance of external application. Okay, so in 6th edition, the importance or the necessity or the advantage of external application is given in aphorism 284 and 285. Okay, so we have to know the numbers of aphorism because it can be asked in MCQ, and in external application they can ask you the advantage and disadvantage of external application. So this question can be asked for SAQ, so it is important to know the advantage of external application and disadvantage of application. So advantage of external application is given in aphorism number 284 and 285 of 6th edition. This is important. And the disadvantage of external application is given in 5th edition of Organon of Medicine in aphorism 196 to 203. Okay, now first we'll begin, as you all know, firstly we always begin with the definition. So first we'll see the definition of external application. So definition is the intention of usage of medicine outside the body and not to be eaten or drunken are considered as external application. Okay, so whatever medicine we use outside the body, जो हम बाहर बॉडी के बाहर से यूज़ करते हैं और जो कि हम खाते या पीते नहीं हैं, that is considered as external application. Okay, so as I already said, Hahnemann refused uses of external application in 5th edition, but he saw the necessity and introduced in 6th edition. Okay, so first in 5th edition Hahnemann refused the external application, but in 6th edition he introduced the external application in homeopathy and he showed the necessity of external application. Okay, so now we'll see tenets of Organon towards the employment of external application. So now we'll see what the Organon what does the Organon says about the external application. Organon का क्या मानना है external application पर, हम वो देखेंगे. Okay, so in his Organon of Medicine, Hahnemann describes about the external application. ठीक है, तो Hahnemann ने अपने Organon में describe किया external application को. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि what he has described about external application in 5th aphorism. ओके, तो ये पहले हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस जो भी उन्होंने बताए थे अपने 5th एडिशन में. ठीक है, सो अंडर द हेडिंग ऑफ ऑर्गेनन का क्या कहना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन को लेके, तो पहले हम देखेंगे 5th एडिशन में उनका क्या कहना था. 5th एडिशन में उनका डिसएडवांटेज पे कहना था. तो अब डिसएडवांटेज में उन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे, किसके एफोरिज्म, विल बी स्टडिंग अबाउट दैट. ओके, सो इन 5th एडिशन एफोरिज्म 196 to 203 वी सी Hahnemann's arguments against the external application. Okay, that is डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन. तो 5th एडिशन में हमने देखा था Hahnemann के आर्ग्यूमेंट्स और उनका जो अगेंस्ट थे वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के, वो देखेंगे. इन शॉर्ट वी सी डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन 5th aphorism. Okay, we had already seen this.
Now we'll see in section 106 and 196 and section 197. So as we saw कि 196 to 203 में disadvantage दिया है fifth edition के. तो now we will see कि what is given in the aphorism 196 and 197. Section is aphorism only. So what is given in these two aphorisms is administration of truly homeopathic medicine both internally and externally simultaneously. Okay, तो इन दोनों aphorisms में दिया है कि अगर हम लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली और एक्सटर्नली हमने साथ में ली, कि जैसे कि हम कोई मेडिसिन हम खा भी रहे हैं और कोई मेडिसिन हम लगा भी रहे हैं, तो क्या होगा अगर हम होम्योपैथी में वैसा करेंगे. तो इट इज़ गिवन इन aphorism 196 and 197. So what will happen is the local symptoms will disappear sooner than the internal symptoms. ओके, तो क्या होगा, इफ़ वी आर ईटिंग ऑल्सो, वी आर टेकिंग द मेडिसिन इंटरनली ऑल्सो एंड वी आर अप्लाइंग इट एक्सटर्नली ऑल्सो, तो वॉट विल हैपन, द लोकल सिम्टम्स, जो भी हमारे एक्सटर्नली जो भी सिम्टम्स होगा, इट इज़ कॉल्ड लोकल सिम्टम्स, विल डिसअपियर सूनर देन द इंटरनल सिम्टम्स. ओके, तो जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा होगा सिम्टम, वो जल्दी चला जाएगा और हमारा जो इंटरनली जो सिम्टम रहेगा वो रह जाएगा, और जो बाहर का एक्सटर्नल सिम्टम होगा वो चला जाएगा. फिर क्या होगा, दिस इज ऑफन thought as complete cure. So अगर externally you will be cured, okay, or the externally it will be cured, or the symptoms will disappear, not cured, it will be disappear. If the external symptom will be disappear, we often think कि it is completely cured, but it is not like that, but the disease remains inside. Okay, तो यही दिया है एफोरिज्म 196 एंड 197 में कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रूली होम्योपैथिक मेडिसिन बोथ इंटरनली एक्सटर्नली साइमल्टेनियसली लिया तो क्या होगा, लोकल सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएंगे, local symptoms will disappear sooner than the internal symptoms. Okay, it is often thought as complete cure, but the disease remains inside. Okay, but disease अंदर रह जाएगी. Now we'll see what is given in section 198. So in 198 it is given about the administration of suitable homeopathic medicine only externally. Either what we saw internally and externally both we were taking, but here we are only taking externally. Okay, so what happened if we only take externally? So removal of local symptoms by a topical topical application. So वही होगा कि बाहर का symptom local symptoms चला जाएगा हमारे ऊपर application करने से. We will have to deal with the less characteristics, less striking and more fluctuating indistinct internal symptoms. Okay, अगर लोकल सिम्टम्स हमारे चले जाएंगे तो हमें क्या होगा, हम अगर लोकल सिम्टम्स चला गया तो हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो उसके बचे हैं वो हमको मिलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो स्ट्राइकिंग सिम्टम था उसका वो क्योंकि डिसअपियर हो गया तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि अभी उसके अंदर इंटरनली उसे क्या हुआ है, क्या किस चीज़ का साइन एंड सिम्टम, क्योंकि इंटरनली व्हेन देयर इज़ रीअरेंजमेंट इन द बॉडी तो ही हमारी बॉडी एक्सटर्नली शो करती है वो हमारे बॉडी पर. जब इंटरनली कुछ डीअरेंज हुआ रहेगा तभी वो हमारी बॉडी एक्सटर्नली लोकल साइन एंड सिम्टम शो करती है. तो अगर हमने एक्सटर्नली एप्लीकेशन देके अगर हम उसके साइन एंड सिम्टम्स निकाल देंगे तो हमें जो उसका स्ट्राइकिंग फीचर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था वो चला जाएगा. तो हमें जो उसकी जो इंटरनल सिम्टम्स है वो हमें पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एंड इट विल लीड टू डिफ़िकल्टी टू सिलेक्ट द रेमेडी. तो हमें रेमेडी सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी. ओके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, रिमूवल ऑफ लोकल अफेक्शन बट अनकैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेफ्ट बिहाइंड. लेकिन जो उसका जो कॉज है वो तो रह ही जाएगा. नो क्लियर पिक्चर ऑफ द केस इज अवेलेबल. अगर हमने एक्सटर्नली निकाल दिया तो जो उसका क्लियर पिक्चर है वो हमें नहीं मिल पाएगा. देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू इंडिविजुअलाइज द केस एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रीट. अगर हम बाहर का ही सिम्टम निकाल देंगे, जब हमें स्ट्राइकिंग फीचर्स ही नहीं पता लगेगा तो इट विल लीड टू डिफ़िकल्टी टू सिलेक्ट द रेमेडी एंड क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलाइजेशन करने में मुश्किल आ जाएगी. तो फिर वही दिया है एफोरिज्म नंबर 198 में. Now we'll see what is given in aphorism 199, section 199. Removal of local disease by surgical or coding drying agent before the selection of a homeopathic remedy.
तो अगर हमने किसी भी लोकल सिम्टम्स को या लोकल डिजीज़ को अगर हमने सर्जरी की हेल्प से रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ठीक है. Then the case becomes much more difficult. If we go with the surgical process, it will lead to difficulty, the case will be more difficult as the most characteristic symptoms are removed and inconstant symptoms are left behind, left out to decide a remedy. Okay, तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था वो तो हमने निकाल दिया, वही है. देन उसके बाद और जो उसके जो अभी भी सिम्टम्स हैं, मेन कॉज वो वाला तो रहेगा ही. सो इट विल लीड टू डिफ़िकल्टी इट विल लीड टू डिफ़िकल्टी टू डिसाइड द रेमेडी. देन इन सेक्शन 200 what they have given is the persistence of the local affection during its internal treatment would have shown that the cure was not yet complete. Okay, तो वही है कि अगर लोकल अफेक्शन रहता, अगर लोकल वो सिम्टम रहता तो हमें पता लगता कि वो क्योर अभी तक नहीं हुआ है. लेकिन हम अगर एक्सटर्नली निकाल देंगे तो हमको कैसे पता लगेगा कि वो क्योर हो गया है इंटरनली, या अभी इंटरनली भी हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है. तो अगर हम वेट करते इंटरनली मेडिसिन लेके हम एक्सटर्नल सिम्टम का लोकल सिम्टम का जाने का वेट करते तो हमें पता लगता कि वेदर इट हैज़ क्योर्ड इंटरनली और नॉट. सो बट इफ़ वी रिमूव इट बाय external application we won't get to know कि whether it is completely cured from internally or not. Okay, then in section 201 they have given about the local symptoms enlarged by vital force lesions internal diseases, lessens internal disease. So what happens is when men's vital force is encumbered with the chronic disease which is unable to overcome by its own powers, it develops local malady on some external part. तो इधर से इधर क्या दिया है, जब हमारे बॉडी का वाइटल फोर्स किसी भी जब वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट होता है, व्हेन वी सी द डीअरेंजमेंट इन अ वाइटल फोर्स, जब हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है जो हमारी पूरे बॉडी को चलाती है, वो अगर बहुत टाइम से अगर डिजीज़ स्टेट में रही या डीअरेंज रही तो वो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाएगी, क्रॉनिक कंडीशन में चली जाएगी. तो जब वो क्रॉनिक कंडीशन में चली जाएगी तो जब वो ओवरकम नहीं कर पाएगी खुद से, वाइटल फोर्स इज़ ऑटोक्रेटिक एंड तो वो खुद सही भी कर देती है, बट वो अगर खुद सही नहीं हो पाएगा खुद के पावर से तो वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नली शो करेगा, वो ना एक्सटर्नली साइन एंड सिम्टम्स दिखाएगा, लोकल मेलेडी लोकली वो डिजीज़ शो करेगा, ठीक है. Thus, the presence of local affection is silent indication of internal disease. तो मतलब उसका वही होता है कि जब हमारी बॉडी का वाइटल फोर्स डिस्टर्ब है और वो अगर क्रॉनिक स्टेट में चला गया है तो वो खुद से क्योर नहीं हो पा रहा, तो वो अपना साइन दिखाता है लोकल अफेक्शन के थ्रू. लोकली कुछ अफेक्ट हो जाएगा हमको बाहर से, एक्सटर्नली वो दिखाएगा कि समथिंग इज हैपनिंग इन द बॉडी. सो इफ विल रिमूव द एक्सटर्नल लोकल और लोकल सिम्टम्स, सो व्हाट विल हैपन्स इज क्या दिया है उधर कि द प्रेजेंस ऑफ लोकल अफेक्शन, मतलब वही कि जो बाहर जो अफेक्शन हमें दिख रहा है, इट इज़ एन इंडिकेशन दैट समथिंग हैज़ हैपेंड इन द इंटरनल बॉडी. सो इट इंडिकेट्स द इंटरनल डिजीज. सो इफ द लोकल सिम्टम्स आर रिमूव्ड, सो इंटरनल डिजीज इंक्रीजेस. तो वही होगा, वो अगर हमें अंदर से बाहर दिखा रहा है कि समथिंग हैज़ हैपेंड इंटरनली, बट वी विल रिमूव इट एक्सटर्नली और हम ये सोचेंगे कि इट इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड, सो इट विल इंक्रीज द इंटरनल डिजीज. सो इट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 201. नाउ विल सी व्हाट इज़ गिवन इन सेक्शन 202. So when the local symptoms is destroyed by the topical application of external remedies, जब हम local symptoms हटा देते हैं external application से तो क्या होता है, then the dormant internal malady is increased, aroused up, which has previously coexisted with the affections. तो वही दिया है कि जो अगर हम एक्सटर्नली निकाल देंगे तो जो उसका इंटरनली जो डिजीज़ रहेगा वो और इंक्रीज़ हो जाएगा, जो पहले थोड़ा सा कम था और जो वो बाहर अफेक्शन दिखा रहा था,
ठीक है, तो हमने जब बाहर वाला निकाल दिया तो वो अंदर का और बढ़कर आएगा. So this is given in aphorism 202. Then in 203, nature tries to protect more vital organs by throwing out everything on less important organs. सो व्हाट इज़ गिवन हियर इज कि ये नेचर का लॉ है कि टू प्रोटेक्ट द मोर वाइटल ऑर्गन्स. तो मोर वाइटल ऑर्गन्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे थ्रो आउट एवरीथिंग ऑन द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. ओके, सो ये सपोज हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इट विल थ्रो एवरीथिंग ऑन द लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन. जो कम इंपॉर्टेंट है हार्ट से, उस पर वो थ्रो करता है. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑन एक्सटर्नल सरफेस, या बाहर की तरफ वो थ्रो करता है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स बचो. बट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मेडिसिन अल्टर्स एंड रिवर्स द मैकेनिज्म. तो जब हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन लेते हैं तो वो नेचर्स लॉ के मैकेनिज्म के रिवर्स जाता है. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द मोर वाइटल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड एंड डैमेज. तो फिर वो क्या रिजल्ट करता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे. ठीक है, देन 203 की फुटनोट में दिया है, external removal with internal administration of dissimilar medicine cannot be cured but weakens the organism and serves to add more artificial chronic disease. So when you will be studying about the artificial disease and natural disease in aphorism number 30, 31, 32, 33, 34 in the second year, you will get to know about this thing. But लेट मी एक्सप्लेन यू थोड़ा सा कि जब हम एक्सटर्नली रिमूव कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं, हम इफ़ वी ट्राई टू रिमूव द एक्सटर्नली कुछ भी हुआ है, उसको हम अगर इंटरनली मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन वो डिसिमिलर है. एज यू ऑल नो, आर होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स कि वी गिव द सिमिलर मेडिसिन विच हैज़ द पावर टू प्रोड्यूस द डिजीज़ इन द हेल्दी स्टेट. तो जो बीमारी को अगर कोई दवा ठीक कर सकता है, वो एक हेल्दी पर्सन में वो क्रिएट भी कर सकता है, तो वो सिमिलर होगा. ठीक है, इफ़ अगर हम मलेरिया के लिए दो लोग हैं, दिस इज़ द हेल्दी पर्सन एंड दिस इज़ द डिजीज पर्सन, मलेरिया हुआ है दोनों को. और ये सिंकोना बार वाली एग्जाम्पल है, दिस इज सिंकोना बार. सो इट हैज़ द कैपेसिटी टू क्योर द मलेरिया, that is why this is the medicine for malaria. बट यही मेडिसिन अगर हम इसे देंगे तो ये मलेरिया को कॉज कर सकती है. तो ये सिमिलर है डिजीज़ के, दैट इज़ वाई दिस इज़ क्योरिंग द डिजीज़. ओके, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू द डिजीज़. लेकिन अगर हम हम कुछ डिसिमिलर मेडिसिन दे देंगे, सपोज ये मलेरिया क्योर करने की मेडिसिन है ही नहीं, बट ये हम उसमें दे देंगे, सो इट विल नॉट क्योर. ओके, सो वही दिखाया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिमिलर मेडिसिन कैन नॉट बी क्योर्ड. ओके, पर ये क्या करेगा, और वीक कर देगा ऑर्गेनिज्म को, और ये और ऐड कर देगा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़. व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़? सो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ इज़ जो मेडिसिन क्योर करेगा, जो मेडिसिन हमारे अंदर जो उसका हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, दैट इज़ आर्टिफिशियल क्रॉनिक disease. Okay, so this is given in aphorism 203. So this was it about the disadvantage of the external application. So एक बार हम पूरा देखते हैं. So we'll combine everything and see disadvantage of external application. So impossible to determine the internal disease or cure or not. ठीक है, तो अगर हम external application लेंगे तो it will become impossible for us to determine whether ये अंदर से भी internally भी ये cure हो गया या नहीं. Individualization becomes more difficult, hence difficult to select medicine. मतलब वही है कि इंडिविजुअलाइजेशन में डिफ़िकल्टी हो जाएगी और हमें मेडिसिन सिलेक्शन में भी डिफ़िकल्टी हो जाएगी. इट राउजेज द इंटरनल डॉर्मेंट मेलेडी विच इज़ प्रीवियसली को एग्जिस्टेड विद द अफेक्शन. तो जो हमारी इंटरनल डिजीज़ है, जो कि पहले थोड़ी सी नॉर्मल थी और वो बाहर साइन एंड सिम्टम्स दे रही थी, वो और अराइज हो जाएगा इफ़ वी विल रिमूव द external symptoms. Then it becomes source of many unwanted chronic maladies. तो वही है, अगर हम इंटरनली निकाल देंगे जो chronic disease condition शो कर रहा था, अगर हमने एक्सटर्नली निकाल दिया, हमको लगा कि अरे ये तो क्योर हो गया, तो वो क्या होगा, वो लीड करेगा कि
तुमको लगेगा कि ओके नाउ वी डोंट नीड द मेडिकेशन, बट इट विल लीड टू क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि हम एक्सटर्नली वो निकाल चुके हैं. देन एक्सटर्नल रेमेडी ऑफ डिजीज विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिसिमिलर मेडिसिन कैंट क्योर एंड एड्स आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज. ये जो हमने लास्ट वाले 203 के फुटनोट में देखा था कि अगर हम डिसिमिलर मेडिसिन भी देंगे तो भी वो क्योर नहीं करेगा इंटरनली. एज वी आर सेइंग कि हमें इंटरनली मेडिसिन देनी चाहिए, हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इंटरनली देने के टाइम पर भी अगर वी विल गिव द डिसिमिलर मेडिसिन, दैट टाइम also in that case it will not cure and it will more add the artificial chronic disease. Artificial chronic disease is what we give the medicine, उसके जो effects होंगे, that is artificial chronic disease. Okay, so this is the disadvantage of external application. We will be studying about the advantage of external application, which is given in the 6th edition of Organon of Medicine. So Dr. Hahnemann wrote the advantage of external application in aphorism 284 and 285. So in section 284 क्या दिया है, absorption of medicine. उसके अंदर क्या दिया है, besides the tongue, mouth and stomach which is most commonly absorb the medicine, the nose and respiratory organs are receptible of the action of the medicine in fluid form by means of olfaction and inhalation through the mouth. ठीक है, हम टंग माउथ ये सब नोज़ रेस्पिरेशन के थ्रू हम मेडिसिन का लेते ही है, थ्रू टेकिंग इट थ्रू माउथ और बाय ऑल्फेक्शन या जो इनहेल वगैरह जैसे यूज़ करते हैं वैसे हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं. लेकिन इन सब के अलावा भी बट द होल रिमेनिंग स्किन ऑफ द बॉडी क्लोज विद द एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन होती है जिस पे एपिडर्मिस होती है, इज अडेप्टेड टू द एक्शन ऑफ द medicinal solution. Our skin is also epidermis. Skin is also very good route to use the medicine. हमें दिया है इसके एडवांटेज के बारे में, absorption of medicine. Okay, Dr. Hahnemann has explained about this in aphorism number 284 कि जो हम लेते हैं उसके अलावा हमारी स्किन भी एक सोर्स जिसके थ्रू हम मेडिसिन ले सकते हैं. Then in aphorism number 285, what is given in aphorism 285, the cure is very old diseases may be furthered by the physical application externally in the back arm extremities by rubbing the same medicine he gives, this is important, internally and which solved itself curatively. मतलब कि ऐसे डिजीज़ होते हैं जहाँ पर हमको एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बैक पे, आर्म्स पर, एक्सट्रीमिटीज़ पर हम रब करके भी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जो हम सेम मेडिसिन लेकिन जो हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं वो. इफ़ वी आर यूजिंग अर्निका मोंटेना इंटरनली, वी कैन अप्लाई इट एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑल्सो. सो दिस वॉज द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कि हम स्किन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं और जो हम इंटरनली ले रहे हैं वो बाहर से भी अगर हम एक्सटर्नली लेंगे सो इट विल क्योर मोर रैपिडली. ओके, सो दिस वॉज द एडवांटेज. So in the examination they can ask about the advantage and disadvantage of the external application. So now we'll see the of the external application in homeopathy. So glycerols, ointments, liniments, opodeldocs, lotions, cerates, poultices, fermentation, plasters, oils, injections, surgical dressings. So these are the lists of external application in homeopathy. So that was it about the external application, advantage and disadvantage. We will be studying about the preparation of all these things in the next video. So I hope it helped you all, and let me know in the comment section if it really helped you all. And my sole purpose is to
share it with maximum people and help them. So share it with your friends and consider subscribing to our channel if you want more such videos. And thank you so much for watching, and thank you for commenting also. I have got cute comments which made me feel ki हाँ ठीक है, I should continue with my work. So I am really thankful for all of them जो सच में कमेंट करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वी विल बी सीइंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.